Welcome everyone to this video on defects in crystal. In earlier classes, we have already looked at stoichiometric defects, and in this class, we will focus on the remaining two classes of defects, which are non-stoichiometric defects and impurity defects. So let's start with non-stoichiometric defects first. Now let's look at what are non-stoichiometric defects. We had seen that in stoichiometric defects, uh, the ratio of number of anions and cations do not change, as a result of which the formula remains the same as indicated by the ideal chemical formula. Whereas in case of non-stoichiometric defects, the ratio of cations to anions change from what is indicated by the ideal chemical formula. So these defects, which causes the ratio of cations to anions change from what is indicated by ideal chemical formula, are called non-stoichiometric defects. जैसे हम बोले कि NaCl है. Now in NaCl, the ratio of Na and Cl minus ion is 1:1. Now for whatever reason, if number of Na plus ions increases, then this ratio will become greater than 1:1. It may become, let's say, 1.1:1 or something like that. So clearly the stoichiometry has been disturbed, right? Instead of 1:1, now we are talking about 1.1:1. So these kind of defects are called non-stoichiometric defects. Now let's look at the different types of non-stoichiometric defects which are seen in crystals. Now the non-stoichiometric defects can broadly be classified into two types. One, metal excess, and the other, metal deficiency. तो जब हम मेटल एक्सेस बोल रहे हैं या मेटल डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैटायंस. So metal excess basically means excess of cations, and metal deficiency means deficiency of cations. यानी पहले केस में cations ज्यादा हो जाएंगे आइडियल नंबर से, और दूसरे केस में cations कम हो जाएंगे आइडियल नंबर से. तो now this metal excess defect can itself be caused by two ways. किस तरीके से? एक है कि भाई कुछ एनायंस मिसिंग हो, तो अगर एनायन कम हो गए तो ऑटोमेटिकली मेटल जो कैटायंस है उसका रेशियो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू एनायन. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट हो, तो इस केस में भी कैटायन टू एनायन का रेशियो बढ़ जाएगा, राइट? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी एक्सेस ऑफ कैटायंस ओवर एनायंस कैन बी कॉज्ड बाय एनायनिक वैकेंसी और बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. ठीक है. और जब मैं मेटल डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, यानी मैं कैटायन कम है, यानी रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन कम है देन प्रिडिक्टेड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला. तो ये जनरली कॉज होता है बाय मिसिंग कैटायन. ओके, ठीक है. तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी. जब हम एक्सेस और डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम कैटायंस की बात कर रहे हैं, यानी रेशियो ऑफ कैटायंस टू एनायंस. मेटल एक्सेस में रेशियो ऑफ कैटायंस टू एनायंस ज्यादा हो जाएगा आइडियल नंबर से, और मेटल डेफिशिएंसी में रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन कम हो जाएगा आइडियल नंबर से. मेटल एक्सेस दो टाइप से हो सकते हैं, बाय एनायनिक वैकेंसी यानी मिसिंग एनायन, और दूसरा बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. और मेटल डेफिशिएंसी जनरली एक टाइप से ही होती है, दैट इज ड्यू टू मिसिंग कैटायन. ओके, तो अब हम इन सब डिफेक्ट्स को थोड़े डिटेल में देखेंगे, एंड वी विल स्टार्ट विथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. So let's first look at metal excess defect, which is caused by anionic vacancy, by missing anions. Okay.
So as the name suggests, it is caused by anions missing from their lattice site. Anions missing from their lattice sites. Now अगर anion is missing from its site, तो वो पोजीशन खाली है, यानी there exists a hole over there. And because anion is missing, that means negative charge is missing. Therefore, to maintain electrical neutrality, that hole is occupied by the electron. ठीक है ना, समझ में आया? देखो, एक एनायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है, एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो अगर एक एनायन मिसिंग है तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया विज़ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं बची अब उसके अंदर. The crystal as a whole will acquire slight positive charge. Therefore, to maintain electrical neutrality, तो वो जो पोजीशन है जहां पर एनायन प्रेजेंट होना चाहिए था, that position is occupied by the electron, right? तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वापस बैलेंस में आ गए एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, राइट? ग्रेट. So let's look at this figure. This will help you understand this metal excess defect by anionic vacancy. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो लैटिस साइट है, यहां पर क्या होना चाहिए था? B माइनस, यानी एक एनायन होना चाहिए था. So that anion is missing from its position, and that position is occupied by an इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वी कॉल दिस इलेक्ट्रॉन एज एफ सेंटर. वाई एफ सेंटर? दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फेबर. आपने देखा ना, फेबर कैसल के कलर्स आते हैं, राइट? सो इन जर्मन फेबर मीन्स कलर. सो बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स which are trapped in these lattice sites impart color to the crystal, these are known as F center. Okay, so electrons trapped in anionic vacancies in a crystal are called F centers because they are responsible for providing color to the crystal. ये इलेक्ट्रॉन जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो they will absorb certain amount of energy. Energy absorb करेंगे and depending upon the kind of energy absorbed, it will impart a color to the crystal. लास्ट जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्साइट होकर एक हायर लेवल पर पहुंच जाएगा, जब वापस आएगा तो इट विल रिलीज दैट एनर्जी, एंड इन दिस होल प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द कलर of light absorbed and emitted, it will impart a particular color to the element or the compound. तो इस केस में भी ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि these electrons are delocalized electron. ये किसी भी एटम के साथ लिंक्ड नहीं है, तो delocalized है, तो they are free to move about in the crystal. And when you have delocalized electron, we know the substance behaves as a conductor. So because of metal excess defect, the electrical conductivity of the crystal goes up. Clear है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, these are delocalized electron. They are free to move throughout the crystal, and a result of which the electrical conductivity increases. Okay, so this is very important. What are F centers and why crystals which shows metal excess defect are good conductor of electricity. Okay, now let's look at a very common question asked in exams which is based on this particular defect, or precisely F centers. And the question is like, why is sodium chloride crystal yellow or lithium chloride crystal pink in color? Sometimes it's asked that why is potassium chloride crystal violet in color? So basically these questions are related to the color of the crystal. Okay,
कि NaCl का क्रिस्टल येलो क्यों होता है, LiCl का पिंक क्यों होता है, पोटेशियम क्लोराइड का वायलेट क्यों होता है. And the answer for all this is same. And the reason is that NaCl crystal is yellow in color because of metal excess defect. What is the reason? Metal excess defect, which is caused by anion vacancies. Now the anion vacancy are occupied by electron, which absorb some energy of the light and impart color to the crystal. And these electrons are called F centers. यानी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही. So the reason for these crystals being colored is the fact that they all show metal excess effect due to anion vacancy. And the vacant sites are occupied by electrons to maintain electrical neutrality. And these electrons are called F centers, and these electrons absorb certain frequency of light and impart color to the crystal. Okay. Now let's look at metal excess defect caused by presence of extra cation. जो अभी हमने देखा था metal excess defect, that was due to anion vacancy, कि कुछ anions were missing from the site. Now this particular thing is because of presence of extra cation. Now since none of the constituent ions are missing, so there are no lattice sites which are vacant, right? So if extra cation has to be present somewhere, it can only occupy interstitial site. Okay. So this defect is caused by extra cations which occupy the interstitial site in the crystal. And again, to maintain electrical neutrality, extra electron occupies another interstitial site. तो जो भी डिफेक्ट है सबके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी. तो अगर एनायन मिसिंग है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा टू मेकअप फॉर द मिसिंग नेगेटिव चार्ज. एक्स्ट्रा कैटायन है यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अगेन एन इलेक्ट्रॉन विल कम एंड ऑक्यूपाई अ पोजीशन, एंड इन दिस केस एन इंटरस्टिशियल साइट. ओके, सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट, इट इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कैटायन व्हिच ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट, and the electrical neutrality is maintained by extra electron occupying another interstitial site. तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो डिफेक्ट है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, दिस इज सिमिलर टू इंटरस्टिशियल voids which we had learned in the first class of defects. And the metal excess defect caused by anionic vacancy is similar to vacancy defect. या फिर आप बोल सकते हो कि हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कॉज्ड बाय एनायनिक वेकेंसी इज लाइक स्कॉटकी डिफेक्ट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज मोर लाइक फ्रैंकेल डिफेक्ट, राइट? ओके, तो टिपिकली कंपाउंड्स which show Frankel defect will also show metal excess defect due to presence of extra cation. चलो ये डायग्राम देखकर समझते हैं कि हो क्या रहा है. तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, इसके अंदर सारी की लैटिस साइड्स फुल है, कोई भी लैटिस साइड से कोई भी पार्टिकल मिस नहीं हो रहा है. बट ये इंटरस्टिशियल साइट है, यहां पर एक एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है, दिस A+. ओके, एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एडजेसेंट साइट. ओके, so this is the extra cation and this is the electron which maintains electrical neutrality and is also responsible for enhanced electrical conductivity. हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, delocalized इलेक्ट्रॉन होगा, तो it is free to move and it will cause electrical conductivity to increase. तो same things happen over here. Okay, तो ये था हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ मेटल, और हमने दोनों टाइप देख लिया, एनायनिक वेकेंसी और एक्सेस ऑफ कैटायन, और दोनों के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस.
Now, one important question which is usually asked in exams, which is based on this defect, is why is zinc oxide crystal yellow in color? अब ध्यान से सुनो कि जब हम एक्सेस कैटायन की बात कर रहे थे तब भी हमने बात करी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप थे लैटिस साइड्स में और उसको हमने एफ सेंटर बोला था ना। जब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहे हैं बाय एनायन वेकेंसी बाय एक्सेस कैटायन, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप इंटरस्टिशियल साइट में, दो इसको हम एफ सेंटर नहीं बोलते, बट दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू द क्रिस्टल। जैसे जिंक ऑक्साइड का केस लेते हैं, तो जिंक ऑक्साइड इज नॉर्मली व्हाइट इन कलर, but on heating it loses oxygen and gives Zn2 plus ions. तो ये Zn2 plus ions get trapped in the interstitial site, और जो दो इलेक्ट्रॉन हमें ऑक्सीजन से मिले हैं they also get trapped in the interstitial site. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप है these are again responsible for giving a yellow color to zinc oxide crystal. तो जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि NaCl, LiCl, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जब हम कलर की बात कर रहे हैं तो वो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण है, जिंक ऑक्साइड का कलर भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण है। बट लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये कलर आ रहा है ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, जबकि जिंक ऑक्साइड के अंदर ये कलर आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कैटायंस। सो दिस डिफरेंस यू शुड रिमेंबर। Okay, let's move ahead. Now we will talk about non-stoichiometric defect, which is caused by deficiency of metal or deficiency of cation, या ratio of cation to anion ideal ratio से कम हो जाएगा। Now it is typically shown by crystals which contains metals with variable valency. मतलब जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, अगर उस तरह का मेटल किसी क्रिस्टल में प्रेजेंट है तो दैट विल शो दिस डिफेक्ट। और वेरिएबल वैलेंसी जनरली कौन से एलिमेंट शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम इनके कंपाउंड की बात करें, फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेंगे। ओके, तो इस डिफेक्ट में होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि some of the cations are missing from the lattice side. ओके, तो मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम द लैटिस साइड, और cation with higher charge is present in the adjacent lattice site. मानिए अगर मान लो तुम्हारा फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है तो हो सकता है Fe2+ is missing from few of the lattice side, and some of those lattice sites might be occupied by फेरिक आयन Fe3+। तो इक्वल नंबर जितने ये मिसिंग होंगे उतने ही ऑक्युपाइड नहीं होंगे। मानो अगर ये 3 मिसिंग है यानी 6 पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है तो इसके 2 प्रेजेंट होंगे, राइट? तो ये नंबर डिफरेंट होंगे, नंबर इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे, ओवरऑल चार्ज क्रिस्टल के ऊपर 0 रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, सो बेसिकली इट इज शोन बाय क्रिस्टल व्हिच कंटेन्स मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसी and it occurs due to the from the lattice side and the presence of cation with higher charge. Okay, let's look at this diagram to understand this metal deficiency defect in a better way. तो अगर इस क्रिस्टल को ध्यान से देखोगे, if you look at this crystal carefully, look at this lattice point. यहां से a cation, but that is A+ is missing, right? And over here also another cation is missing. Okay, but this place is being occupied by the ion with a higher positive charge. तो दो हमारे कैटायन मिसिंग थे, ए के दोनों का चार्ज था +1, and this place has been taken by another ion of A with a charge of +2. तो क्लियरली A वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, तो लोअर वैलेंसी वाला या मोनोवैलेंट
कैटायन मिसिंग है एंड इट स्पेस हैज बीन टेकन अप बाय अ डाइवेलेंट कैटायन, और 2 मोनोवेलेंट कैटायन मिसिंग है एंड उसकी जगह पर एक डाइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, बट इफ यू लुक एट नंबर ऑफ कैटायंस, यहां पर 2 मिसिंग थे ए के, और यहां पर आए कितना, ओनली 1। सो द रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन हैज डिक्रीज्ड इन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Okay, so as I told you, a divalent ion has replaced 2 monovalent ions. So clear hai? This metal deficiency defect, it is shown only by metals which show variable valency. Now example, as we have already touched upon, ferrous oxide, ferrous sulfide, nickel oxide show this type of defects क्योंकि आयरन निकल दोनों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। So in case of ferrous oxide, some Fe2 plus ions are missing and those sites are occupied by Fe3 plus ions. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जितने Fe2 plus ions मिसिंग है उतने Fe3 plus ions प्रेजेंट नहीं रहते हैं। उनका नंबर इस तरीके से डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो फॉर्मूला है, बिकॉज हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो FeO का होता है, in reality it is something like more like Fe, let's say 0.950। तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि ज्यादा Fe2 प्लस आयंस मिसिंग होंगे, उसकी जगह कम Fe3 प्लस आयंस आएंगे। So overall stoichiometry gets disturbed and it's experimentally observed that this ratio is in reality close to 0.95:1। Okay, so I hope this defect is also clear. Now we will look at impurity defect. Now we will discuss the third category of defects in crystalline solid, which is impurity defects. Now impurity defects occur when foreign atoms are present in the lattice site or in interstitial site। मतलब कि होस्ट एटम के अलावा कोई दूसरा एटम या तो लैटिस साइट ऑक्यूपाई करता है या इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है। दिस इज कॉल्ड इंप्योरिटी डिफेक्ट। नाउ जब ये फॉरेन एटम इज प्रेजेंट एट लैटिस साइट पर प्रेजेंट है, मतलब उसने होस्ट एटम को रिप्लेस करा होगा, राइट? सो व्हाट वी गेट इज अ सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन। So when foreign atoms are present at lattice sites in place of host atoms, we get substituted solid solution। और जब foreign atom interstitial site पर present है तो हमें क्या मिलता है? Interstitial solid solution। Okay, so impurity defects can be of two types: substituted solid solution or interstitial solid solution, or rather impurity defect may lead to the formation of substituted solid solution or interstitial solid solution। Now ये जो impurity defects हैं, lot of time these impurities are added on purpose, मतलब जानबूझकर impurities crystal में add करते हैं, and this is done to change the properties of the crystal, and mainly हम उसकी electrical conductivity change करने के लिए impurities add करते हैं। And this process of adding impurities to a crystalline solid so as to change its property is called doping। Doping का मतलब होता है impurity add करना। So ये process of adding impurity to a crystalline solid so as to change its property is called doping। अब impurity defects हम ionic solids में भी देखते हैं and we also see it in covalent solid। Though impurity defects in covalent solid is extremely important, the entire semiconductor industry is based on it। तो अभी पहले हम impurity defects ionic solid में देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे impurity defects in covalent solids। तो अगर ionic solid है
तो जो इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं वो भी आयनिक इन नेचर होती है। और अगर जो वैलेंस स्टेट है इंप्योरिटी आयन की वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ होस्ट आयन, मतलब जैसे मान लो हमारा क्रिस्टल है NaCl का और उसमें हमने इंप्योरिटी ऐड करी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो क्लोरीन तो कॉमन आयन, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम सोडियम को कंपेयर करें तो सोडियम की वैलेंसी है +1 और स्ट्रोंशियम की है +2, राइट? So this is what I mean when I say if the valence state of impurity ions is different from that of host ions. यहाँ पर host ion सोडियम था जिसके क्रिस्टल के अंदर हम डोपिंग कर रहे हैं, इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और जो इंप्योरिटी आयन है स्ट्रोंशियम आयन उसकी वैलेंसी और होस्ट आयन की वैलेंसी डिफरेंट है। तो अगर ऐसा होता है तो इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ओरिजिनल क्रिस्टल। ओके, तो बेसिकली अगर हम जो इंप्योरिटी आयन ऐड कर रहे हैं उसकी वैलेंस स्टेट और जो होस्ट आयन है उसका वैलेंस स्टेट डिफरेंट है, तो जो क्रिस्टल क्रिएट होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई impurities are added to a pure crystal. तो ये एग्जांपल जो मैंने अभी बोला ये यहां पर रिटर्न है, इसको देखो ध्यान से। When molten NaCl with little strontium chloride added to it, ये impurity की तरह काम करेगा, right? So when this is allowed to cool down, then strontium ion replaces sodium ions, or for every strontium ion 2 sodium ions will be replaced, क्योंकि स्ट्रोंशियम पे चार्ज +2 है, सोडियम पे +1 है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेरे को मेंटेन करनी है तो मेरे को 2 सोडियम आयंस रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन आयनिक सॉलिड, और इसके कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, विच इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट सॉलिड्स, and this we will discuss from the perspective of group 14 elements which are germanium and silicon. तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ग्रुप 14 एलिमेंट है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर ईदर डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और ग्रुप 15 एलिमेंट्स टू क्रिएट सेमीकंडक्टर्स with desired electrical conductivity. तो हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स को डोप करते हैं, इंप्योरिटी ऐड करते हैं, या तो हम ग्रुप 13 की ऐड करेंगे जिसकी वैलेंसी 3 होगी, या ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है, और कितनी डोपिंग करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें उसकी कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए। तो बेसिकली डोपिंग के 2 तरीके हो गए, या तो हम इसे इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी से डोप कर रहे हैं, मतलब वैलेंसी 4 थी, हम किस इंप्योरिटी से उसको डोप कर रहे हैं? ग्रुप 15 से, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, या हम उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी से डोप कर रहे हैं, यानी ग्रुप 13 से, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो ये डोपिंग 2 तरीके से हो सकती है ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, जैसे मैंने बोला कि ग्रुप 14 एलिमेंट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और ग्रुप 15 यानी फास्फोरस आर्सेनिक के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो जब हम ग्रुप 14 को ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप कर रहे हैं तो वी कॉल इट डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 5, तो ये रिच है इन टर्म्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और
इस प्रोसेस से जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखेंगे कैसे। तो अभी तक याद रखो, डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मींस ग्रुप 14 एलिमेंट के अंदर हमने ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डाली। ग्रुप 15 में फास्फोरस, आर्सेनिक, और इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में टिपिकली सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर क्या होगा कि एवरी सिलिकॉन एटम इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 अदर सिलिकॉन एटम्स, और सबके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स वो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। ओके, बट अगर हमने लेट्स से उसके अंदर फास्फोरस की इंप्योरिटी ऐड कर दी, अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 5। तो 4 तो उसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिए, जैसे एक इस सिलिकॉन के साथ यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ, जैसे ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग के लिए यूज कर लिए विद सिलिकॉन, पर ये 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, यानी ये फ्री है टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे अगर हम पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखें तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर ये फास्फोरस का एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है विच इज डीलोकलाइज्ड एंड इट कैन मूव एवरीवेयर थ्रू आउट द क्रिस्टल, and electrical conductivity is due to delocalized electron. So because of this delocalized electron, electrical conductivity goes up. और क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण, that's why we call it n type semiconductor, n for negative. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितनी इंप्योरिटीज में ऐड करते हैं, अगर हम ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर। एक एटम से हमें एक डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो अगर हमने 100 ऐड कर दिए तो 100 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 20 ऐड करें तो 20 ही मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है सिलिकॉन की, उतनी ज्यादा हम उसकी डोपिंग करते हैं। क्लियर है ये कि व्हाई डू वी कॉल इट एन टाइप सेमीकंडक्टर? वी कॉल इट एन टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड एक्सेस इलेक्ट्रॉन। और ये कब फॉर्म होता है? जब ग्रुप 14 एलिमेंट लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस एंड आर्सेनिक। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी। जब हम डोप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी से, यानी हम ग्रुप 14 को डोप कर रहे हैं ग्रुप 13 के साथ। यहां पर 4 वैलेंस, यहां पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव होल्स। अब होल्स क्या होता है अभी हम समझेंगे। और मिसिंग इलेक्ट्रॉन, मिसिंग इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें इंक्रीज कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड होल। तो पॉजिटिव से आता है पी, तो पी टाइप सेमी कंडक्टर। और समझ अगेन इस फिगर को ध्यान से देखो, यहां पर बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसने ये यहां यूज कर लिया, एक इसने यहां यूज कर लिया, एक मानो उसने ये यूज कर लिया। तो 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, पर ये चौथा बॉन्ड इनकम्प्लीट रह गया। तो ये जो लाइन से, ये लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये जो आप देख रहे हो, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है यहां पे, यानी एक होल है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड होल। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं होल। तो अब क्या होगा, तो मानो ये तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये जो चीज है ये आपकी होल है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा,
नेबरिंग इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, तो एज द रिजल्ट ऑफ विच होल काम। फिर हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, यहां पर आ जाए, तो होल यहां पर आ जाएगा। तो इन दिस वे होल कीप्स ऑन मूविंग। जैसे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने की कोशिश करता है, होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। ओके, सो इन दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर, as increased conductivity is due to positively charged hole, therefore these are called p-type semiconductors। और ये कब बनते हैं? जब हम ग्रुप 14 को डोप करते हैं ग्रुप 13 से, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो ये तुम्हारे सारे ग्रुप 13 के एलिमेंट है जो कि डोपिंग के लिए यूज करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। और ग्रुप 15 में टिपिकली हम यूज करते हैं फास्फोरस और आर्सेनिक। तो क्लियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज डोपिंग? मतलब जो आपकी पूरी आईटी इंडस्ट्री, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। चिप्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा की डोपिंग नहीं करेंगे तो आपका सेमीकंडक्टर क्रिएट नहीं होगा, आपकी चिप्स नहीं बनेंगी, ये पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती। सो दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली important, and this you will study even in further detail in your physics semiconductor chapter. So with this we come to the end of this chapter, solid state, and more specifically the subtopic defects. And we looked at three kinds of defect: stoichiometry, non-stoichiometry and impurity defects. So I hope this entire topic is clear to you. इन वीडियोस को ध्यान से देखो, गो थ्रू दिस वीडियोस, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो, समझ में आएगा। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? सो फॉर नाउ, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग एंड स्टे एट होम एंड रिमेन सेफ। थैंक यू।